میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ تو آج میں صلیبی 7 کلمات کے بارے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ صلیبی 7 کلمے یسوع نے کیوں بولے، کہاں پر بولے، اور یسوع کی عمر کتنی تھی اس دن کیا تھا، وار کیا تھا، تاریخ کیا تھی، سن کون سا تھا جب یسوع نے 7 کلمے صلیب پر بولے۔ تو سب سے پہلے مکاشفہ کتاب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ سن 95 سے 96 تک 18 مہینوں میں ترکی میں بیٹھ کر یوحنا عارف نے لکھی۔ اس کے 22 باب ہیں اور 404 اس کی آیات ہیں۔ یہ یوحنا زبدی کا بیٹا ہے۔ یہ یوحنا عارف جو ہے یسوع کا شاگرد تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے 7 کلمے بولے اور گثسمنی باغ کے پاس بولے، گثسمنی باغ کے باہر بولے، گثسمنی کے دروازے کے پاس بولے۔ تو بائبل میں لکھا ہے، یوحنا عارف کی کتاب جو ہے آخری کتاب ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 96 سال کے بعد لکھی گئی۔ یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ جو ہے، یعنی یسوع مسیح کا مکاشفہ، یہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 62 سال کے بعد لکھی گئی۔ اسی کتاب کو جاننا، اسی مقام کو جاننا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ یہ کتاب ترکی میں بیٹھ کر لکھی گئی، یعنی پطمس کے جزیرے میں بیٹھ کر لکھی گئی۔ اس میں یوحنا عارف 7 کلیسیوں کو دیکھ رہا ہے، 7 کلیسیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ مکاشفہ کتاب پہلا باب 12ویں آیت۔ یوحنا عارف دیکھ رہا ہے، یسوع 7 چراغ دانوں میں سفر کرتا ہے، یسوع 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ چراغ دان سونے کے یوحنا عارف دیکھ رہا ہے۔ یہ 7 چراغ جو ہے یہ 7 کلیسیاں ہیں، روشن ضمیر کلیسیاں ہیں، ایماندار کلیسیاں ہیں، پرہیزگار، یسوع کے خون کے خریدی ہوئی کلیسیاں ہیں جن کے اندر یسوع پھرتا ہے۔ کچھ لوگ ان چراغ دانوں کو سمجھ نہ سکے، وہ آج بھی چرچوں میں چراغ جلاتے ہیں کہ یوحنا عارف کہتا ہے۔ یہ 7 چراغ دان کیا ہے؟ یہ 7 کلیسیاں ہیں۔ اسی طرح 16ویں آیت میں یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا عارف دیکھ رہا ہے کہ یسوع کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں۔ 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں 7 ہی ستارے ہیں۔ آج ہم ان کا بھید سمجھیں گے، 7 ستارے کیا ہے اور 7 چراغ دان کیا ہے۔ یسوع نے 7 کلمے کیوں بولے؟ یوحنا عارف کہتا ہے، یسوع بھی یہی کہتا ہے کہ لکھ، یوحنا عارف سے یسوع کہتا ہے لکھ کہ وہ 7 چراغ دان جو ہے، مکاشفہ کتاب پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو 7 چراغ دان تو نے دیکھے ہیں سونے کے، جن کے اندر ایک شخص پھرتا ہے، وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یوحنا عارف کو یسوع کہتا ہے
जो 7 सितारे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे हैं, वो 7 कलीसियों के 7 फरिश्ते हैं, यानी 7 कलीसियों के 7 खादम हैं जिनको मेरे दाहिने हाथ में तू देख रहा है। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन इसको समझना मेरा और आपका फर्ज बनता है। तो यीशु मसीह ने इसलिए 7 कलमे बोले कि 7 का अदद कामल अदद है। 7 का अदद जो है फतह मंदी का अदद है। 7वें कलमे पर यीशु ने फतह पाई, मौत पर भी फतह पाई, शैतान पर भी फतह पाई, दुनिया पर भी फतह पाई। तो आज मैं वो मकाम बताना चाहता हूं जहां पर यीशु मसलूब हुआ। यूहन्ना की इंजील 19 बाब 41 आयत मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु जिस जगह पर मसलूब हुआ वहां एक बाग था। उसी बाग के अंदर एक नई कब्र थी जिसमें यीशु को दफन किया गया। वो कब्र जो थी वो यीशु के मरने से पहले ही निकली हुई थी। वो यूसुफ की कब्र थी। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये बात कि यीशु ने 7 कलमे जब बोले तो ये जैतून के पहाड़ पर बोले। जैतून का पहाड़ सतह समुंदर से 2600 फुट की बुलंदी पर है। ये सफेद पत्थरों का पहाड़ है, इसकी 4 चोटियां हैं। इसी पहाड़ पर से यीशु ने लाजर को जिंदा किया। इसी पहाड़ पर यीशु के पांव मरियम मगदलीनी ने धोए अतर से। इसी पहाड़ पर मरियम दूसरी ने, लाजर की बहन ने धोए। पहले लाजर की बहन ने यीशु के पांव और सिर पर अतर डाला, फिर मरियम मगदलीनी ने, और दोनों ने बैतनिया गांव के अंदर यीशु के बदन पर अतर डाला। मरियम मगदलीनी ने शमौन कोढ़ी के घर में अतर डाला जब उसको कोढ़ से शिफा मिली उसकी खुशी में। तो मरियम लाजर की बहन ने उस दिन यीशु की कब्र अपना पांव पर और सिर पर अतर डाला जिस दिन लाजर को यीशु ने जिंदा किया था शाम के वक्त। ये बैतनिया का गांव जो है ये भी जैतून के पहाड़ पर है। बैत फिगे भी जैतून के पहाड़ पर है जहां से गधी और उसके बच्चे को लिया गया। तो जिस दिन यीशु ने 7 कलमे बोले उस दिन जुम्मे का दिन था, माह अप्रैल था और 2 तारीख थी। यीशु जिस दिन जैतून के पहाड़ पर मसलूब हुआ सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक स्लीप पर रहा और दोपहर से तीसरे पैर तक यानी 3 घंटे अंधेरा छा गया। जब यीशु ने 7 कलमे बोले तो जैतून के पहाड़ पर उस दिन खुदावंद यीशु मसीह की उम्र, ये समझने वाली बात है, 33 साल 4 महीने और 10 दिन थी। यीशु की उम्र उस दिन 33 साल 4 महीने 10 दिन थी और जुम्मे का दिन था और बामकाम गतसमनी का बाग। जब यीशु को जुम्मे के दिन शाम 4 बजे दफन किया गया, 3 बजे मसलूब हुआ, 4 बजे दफन किया गया, तो 3 दिन कब्रिस्तान के अंदर रहे। वो भी जैतून के पहाड़ पर थी, यानी एक चट्टान के अंदर थी।
تو यीशु 3 दिन के बाद जब जिंदा हुआ तो जैतून के पहाड़ से 40 दिन यीशु फिर दुनिया को नजर आते रहे और बहुत से मोजज़ात करते रहे। जब यीशु आसमान पर गए तो बहुत से लोगों को दिखाई दिए। तो यीशु आसमान से यानी जैतून के पहाड़ से गए। जैतून के पहाड़ की 4 चोटियां हैं। तीसरी चोटी से यीशु ने आसमान पर सौत फरमाया। और जैतून का पहाड़ सफेद पत्थरों का पहाड़ है, ये खुरिया मिट्टी का पहाड़ है। यीशु की रिहाइश जो थी वो भी जैतून के पहाड़ पर थी। तो आज हम ये 7 कलमों का सिर्फ जिक्र सुनेंगे। इसके बाद पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, 5वां कलमा, छठा कलमा, 7वां कलमा सुनेंगे एक एक करके कि पहले कलमे की पेशन गोई किसने की, दूसरे कलमे की पेशन गोई किसने की, तीसरे कलमे की पेशन गोई किसने की, चौथे की पेशन गोई किसने की, 5वें की पेशन गोई किसने की, छठे की पेशन गोई किसने की, 7वें कलमे की पेशन गोई किसने की। और कितने कितने 100 साल यीशु के पैदा होने से पहले की कि यीशु 7 कलमे सलीब पर बोलेगा। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। शुक्र करता हूं प्यारे खुदावन आज शाम के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए। जो लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उनके लिए आसमान से अपनी शफा का दरवाजा खोल दे। उनके ज़हन को रोशन कर, उनके ज़मीर को रोशन कर, ताकि तेरे कलाम को जान सके और बहुत सी बरकतें हासिल करके तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन।